વેપાર હરિ તારા નામનો આધાર ઘર મન ભજનનો વેપારજી તો ભજનનો વેપાર કરીએ ભજન કરીએ તો આપણે કહી શકીએ ને કે અમે પરમાત્માના છીએ પણ આપણે કહી શકતા નથી કેમ એ જ્યાં સુધી બુદ્ધિમાંથી નીકળે નહીં ત્યાં સુધી એ બ્રહ્મરૂપ થઈ શકાતું તો છે વાસ્તવિક રીતે તો તમે બધા જ એ બ્રહ્મરૂપ છો એ અજ્ઞાનતા જ્યાં સુધી નીકળે નહીં અને એને માટે મહાપુરુષે ધીરે ધીરે આપણને બધું જ એ પીરસી દીધું એમાં સર્વપ્રથમ પહેલા તો એ સંસ્કારની જરૂર છે જેની જરૂર છે એ નાનપણથી જ બાળકોને સંસ્કાર એ જો મળે તો જીવનની અંદર ઉતરી શકે તમે કુમળો છોડ હોય નાનો છોડ હોય તો તમે જેમ વાળો એમ વળે અને મોટો થયા પછી વાળો તો અને નાનપણથી જ એટલે નીતિકારો કે છે બચપણથી જ જો એ બાળકોને સંસ્કાર આપવામાં આવે અને જેટલા જેટલા એ થઈ ગયા એને નાનપણથી એ સંસ્કાર મળ્યા જેમ ધ્રુવજીને નાનપણમાં સંસ્કાર મળ્યા પ્રહલાદજીને નાનપણમાં સંસ્કાર મળ્યા અને આપણે શિવાજીને એની માતાએ નાનપણથી હાલડામાં સંસ્કાર આપ્યા જાણો છો ને તમે અત્યારની માતા તો સમજે છે કે નવરાવો ને નવરા પછી શું કરવાનું બોલો ભાઈ ને કઈક ધોળું ધોળું સોપડે પછી કપાળમાં કાળુટીનું કરે અને પગમાં તળિયે કાળુટીનું કરે અને વેચનું જબલું કરે છે એટલે સમજી જાય કે અમારા બાળકોની અમારી માતા પિતાની ફરજ થઈ પૂરી યાદ રાખજો એટલું કરવાથી એટલું કરજો એટલું કરવાથી માતા પિતાની ફરજ પૂરી થતી નથી યાદ રાખજો નીતિકારો ત્યાં સુધી કે છે માતૃ પિતૃ કિતાભ્યાસો ગુણિતામ એતિ બાલક ન ગર્ભચુતિ માત્રે ન પુત્ર ભવતિ પંડિત માતા પિતા એ બાળકને જન્મ આપી દીધો એટલે માતા પિતાની ફરજ પૂરી થતી નથી જ્યાં સુધી નાનપણમાં જ એ સંસ્કાર મળે નહીં નીતિકારો તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે લાલિત પંચવર્ષાની 10 વર્ષાની તાળીત પ્રાપ્તે તુ 16 વર્ષે પુત્ર મિત્ર આચરિત 5 વર્ષનું બાળક થાય ત્યાં સુધી તો એનું તમે લાલન પાલન કરી શકો અને 5 વર્ષ પછી 6ઠા વર્ષની અંદર પ્રવેશ કરે ને પછી 10 વર્ષ એટલે કેટલા થાય 5 માં 10 ઉમેરો કેટલા થાય મને એટલું જ ભણી નથી આવડતું નહીં તો આદર્શ હોય 5 ની અંદર 10 ઉમેરો કેટલા થાય 15 તો એ 6ઠા વર્ષથી 15 વર્ષ સુધી 10 વર્ષની અંદર એને બાળકને શામ દામ વેદ અને દંડ ચારે નીતિ અપનાવી અને એને સારા સંસ્કાર આપવાને મને પુરુષાર્થ કરો ધર્મની સુંદર આપણને ઉપદેશો મળી રહ્યા ચાલતા ગયા હતા મેં સતુર્ગે ખૂબ સુંદર શ્રી સુરેશભાઈને વિનંતી કરું પછી એમનું પણ ફુલારથી સન્માન કરો હવે પછી આપણને સુંદર ઉપદેશ એને સાંભળવાની આપણી ઈચ્છા છે ને એવા હવે આજનો દિવસ છે પછી તો બધા પણ આગળ આપણે અને સ્વામીજીના પ્રવચન પછી અહીંયા પૂર્ણ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર દુરિતાનિ પરાશુભ યદ ભદ્રમ તન્યાશુભ
शांति ओम। बोलिए परम श्रद्धेय परम पूज्य पाद ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद गुरु जी महाराज की। भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की, भारत के मुनियों की, गंगा माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव। मंचस्थ विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी जगदीशानंद सागर जी महाराज, मेरे वाम पार्श्व में बैठे हुए इस शतकंडी महायज्ञ एवं भक्ति वेदांत सम्मेलन के सूत्रधार परम प्रेमास्पद श्रद्धेय स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज, हमारे परम आदरणीय परम प्रेमास्पद श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम प्रेमास्पद श्रद्धेय स्वामी भूमानंद जी महाराज, परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी गोपालपुरी जी महाराज, ब्रह्मचारी दयानंद जी, साध्वी वृंद, कल्याण के अभिलाषी प्रिय सज्जनों और स्नेहवती बहनों माताओं, बहुत ही सुंदर ये आयोजन आज अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है और भगवान नारायण का स्वरूप यज्ञ यजन, एक तरफ महापुरुषों का संतों का संग, भक्ति और वेदांत की चर्चा, बड़ा सुंदर। अभी अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज संस्कारों का उपदेश कर रहे थे, उससे पूर्व स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी भूमानंद जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सब लोग बहुत सुंदर भक्ति और वेदांत की चर्चा कर रहे थे। आज अंतिम दिवस है, थोड़ा खिचड़ी हम भी खिला देते हैं आपको। भक्ति किसको बोलते हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है, पहले भक्ति की चर्चा करते हैं। भक्ति की परिभाषा क्या है, आप भक्ति को क्या समझते हो? माला पहनना भक्ति है क्या, या वेश बनाना भक्ति है? भक्ति की व्याख्या हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर की है। सबसे पहले तो भक्ति की व्याख्या नारद भक्ति दर्शन में देवर्षि नारद जी ने की। वो कहते हैं भक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा साधु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा है। उस परमात्मा के साथ परम प्रेम हो जाना ही भक्ति है। प्रेम समझते हो नहीं है? आप भी तो बोलते हो मतलब मैं प्रेम करूं शो, लेकिन आप जो प्रेम करते हो वो राग है, उसमें मोह है, क्या है, उसमें कामना है। और यहाँ क्या कहा, परम प्रेम। क्या कहा नारद जी ने, परम प्रेम, विशेषण जोड़ दिया। हमारे हिंदी साहित्य में विशेषण जब जुड़ जाता है तो एकदम उसका महत्व बढ़ जाता है। प्रेम का महत्व ऐसा है, स्वामी राम कहा करते थे कि प्रेम शब्द कहना सरल है पर प्रेम करना बड़ा कठिन। प्रेम में प्राण देने
देने पड़ते हैं। क्या देना पड़ता है? मीरा ने प्रेम किया नहीं भगवान से किया ना, तुलसीदास जी ने किया, रविदास जी ने किया, एकनाथ जी ने किया, नामदेव जी ने किया, कबीर जी ने किया, इन सब ने प्रेम किया ना परमात्मा से। जिन प्रेम किया तेने ही प्रभु पाया। अपना सर हथेली पर रखना पड़ता है प्रेम के लिए। प्रेम बहुत कठिन। तो प्रेम ही भक्ति है एक। तो दूसरा, शांडिल्य महर्षि ने भक्ति व्याख्या की। उन्होंने शांडिल्य सूत्र लिखे, सा परा अनुरक्ति ईश्वरी भक्ति, परमात्मा में परम अनुरक्ति हो जाना। अब तीसरा सुनो, जिसको भक्ति और वेदांत दोनों को एक मिला देते हैं ना, वो हमारे आदि जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज। वो भक्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। जब किसी साधक ने पूछा कि महाराज भक्ति के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा मोक्ष कारण सामग्री में भक्ति रेव करियासी। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कैसी भक्ति करनी पड़ेगी? बोले स्वस्वरूपान अनुसंधान भक्ति। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना पड़ेगा, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वेदांत में देखो, वेदांत में यही है। हमारे यहाँ वेदांत में तीन ही चीजों का बोध कराया जाता है, जीव, जगत और परमात्मा। किसका? जीव, जगत और परमात्मा। जीव का पहले कराया जाता है, कभी विचार करो कि मैं कौन हूँ। भगवान भाष्यकार कहा करते थे, बार बार विचार करो, कोहम इदम जातम, कोवई कर्ता से विद्यते, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आप जानते हो आप कहाँ से आए हो? 100 साल पहले कहाँ थे आप बताओ? जानते हो? झांसीदारा में थे? कभी जगह क्या? अब आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद कहाँ जाओगे? आप जानते हो? इसका मतलब आप जानते ही कुछ नहीं है। इसलिए गुरु के पास आकर जान कहते हैं, बापू मैं तो कुछ जानता ही नहीं। हम सब जानते हैं। जानते नहीं आप लोग? तो कल क्या खाया था स्वामी जी? वो बनाया था बढ़िया। महाराज आप तो बनाना ही नहीं जानते हो बढ़िया। हम बढ़िया से बढ़िया बना के खिलाएंगे आपको। आप सब कुछ जानते हो ना, फिर आप कैसे कहते हो महाराज मैं कुछ जानता ही नहीं, अज्ञानी हूँ? तो कहेंगे महाराज मैं परमात्मा के बारे कुछ नहीं जानता, अपने बारे कुछ नहीं जानता। स्वामी रामतीर्थ एक बड़े महान संत थे। आज से 100 साल पहले वो लंदन गए। लंदन जब गए तो उन्होंने एक विज्ञापन दिया जगह जगह पर, अगर कोई ईश्वर का दर्शन करना चाहता है तो मेरे पास आए, मैं उसको ईश्वर का दर्शन करा दूंगा, भगवान का दर्शन हो जाए, मेरे पास आओ। ऐसा विज्ञापन पहले कभी किसी ने दिखा नहीं, सुना नहीं। अब एक अंग्रेज बड़ा नास्तिक था। नास्तिक भी तो बड़ी दुनिया में बड़े बड़े पढ़े ना भाई। स्वामी जी अभी चर्चा कर रहे थे बच्चों में संस्कार। हमारे महापुरुष कह रहे थे संस्कारों की बात है। आप बताओ, आप इतने लोग बैठे हो, भारत के अंदर भारतीय वैदिक संस्कृति में कितने संस्कार है बताओ? हाथ खड़ा करके बताओ अगर कोई जानता है। आप मत बोलना महापुरुष, बताओ बताओ, जानते हैं आप? कहेंगे बापू हम तो गाय दूल्हा जानते हैं, आम की बाड़ी के बारे में जानते हैं, संस्कारों के बारे में। कितने दुख की बात है। भारतीय वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार है। कितने? 16। कितने? गर्भाधान से लेकर अंतिम दाह संस्कार तक कितने संस्कार हैं? आजकल तो 2 ही संस्कार रह गए, एक विवाह संस्कार, दूसरा दाह संस्कार। हाँ, बाकी तो कोई है ही नहीं। मस्त लपेट कर लेकर गया। मन का क्या बात है, हम अपने संस्कारों को भूल गए और ये हमारे संस्कारों को पकड़ रहे थे। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में था, तो भक्त का लड़का मुझे कहने लगा गुरुजी मेरी शादी है सिडनी में, आपको मेरे साथ चल रहा है। मैंने कहा हम लोग तो क्या करेंगे, महात्मा लोग तो शादी वादी के चक्कर में लगन में कहीं जाते नहीं, आपको चलना पड़ेगा। तो मुझे ले गए। वो बोला महाराज जी एक ही बार करूंगा, आप ऐसा क्यों पूछते हो? तो मैंने कहा फिर आराम से बैठो, कम से कम ब्राह्मण को अच्छी तरह से मंत्रों का उच्चारण करने दो। आज समय नहीं किसी के पास।
ऐसा नहीं आपके पास समय नहीं। संस्कारों की बात तो स्वामी जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। एक मदालसा माँ भी थी जिसने अपने एक एक पुत्र को उपदेश दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमवाच पुत्रम। अपने एक बेटे को कहती, बेटा तू तो शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्मल स्वरूप है, तू तो नारायण का स्वरूप है, देख तू कौन है, तू कहां से आया है, पहचान अपने स्वरूप को। ऐसा उपदेश एक माँ अपने बच्चे, और वो बच्चा वो मदालसा कुछ छोटी मोटी नहीं थी, महारानी थी, राजा की महारानी होते अपने बच्चों को महात्मा बना दिया एक एक करके। आप अपने बच्चे को बनाएंगे क्या महात्मा? आज की माता की मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, धारासभ्य बनेगा, प्रधान बनेगा, भाग लूटेगा। हम लोग दिशा भटक रहे हैं अपने संस्कारों को, और भारतीय संस्कार सबसे बढ़िया है। ऐसी संस्कृति, भारत का कोई पति और पत्नी विदेश में प्रदेश में गए, इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड की जो अंग्रेज की पत्नी उस भारतीय स्त्री से पूछती है, ये जो तुम्हारे साथ आया है ये कौन है? उसने कहा मेरा हस्बैंड है, मेरा पति है। तो उसने अंग्रेज की पत्नी ने पूछा कब से? कब से? कब से का क्या मतलब? जब से लगन शादी हुआ तब से? बोले कितने वर्ष થઈ गए शादी को? बोले 30 वर्ष। कितना? बोले ओ माय गॉड, 30 वर्ष से एक ही हस्बैंड। भारत में हिमालय जैसा पावन पर्वत कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पौधे की, तुलसी की भी पूजा करते हैं, गाय की। अभी स्वामी जी कह रहे थे गाय, गावो विश्वस्य मातरः, गाय ही एक ऐसी जो संपूर्ण विश्व की माँ। गाय कभी देखती है कि दूध पीने वाला कौन है, ब्राह्मण है कि चंडाल है कि क्षत्रिय है, कौन कभी पूछती है क्या? भाई हिंदू है कि मुस्लिम है, ये देखती है क्या? सबकी माँ। आप तो जानते नहीं, आज से 100 साल पहले भारत का इतिहास देखो। जब कोई व्यक्ति किसी के घर में आता था तो उसके पास एक ही धन संपत्ति होती थी, उसके घर में गाय होती थी। जब उसके घर में कोई अतिथि आता था, मेहमान आता था, तो उसके सामने गाय लाकर खड़ी कर देते थे कि महाराज अतिथि देवो भव, आओ अंदर, हम आपका वैज्ञानिक मंगल तक पहुंच गया है, अंतरिक्ष की खोज कर रहा है, साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। 50 साल पहले कहवा लेते थे, उसके लिए मध ढूंढते थे, मक्खन ढूंढते थे। अब तो छोटे छोटे कैप्सूल खाओ, पानी डालो, कैप्सूल भी का सीधा इंजेक्शन ही दे देते, छुट्टी। इतना मेडिकल साइंस हो गया, सर्जरी कितनी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन व्यक्ति अपने आप से दूर हो। इसलिए मैं कई बार कहा करता हूँ, आज लोग कहते हैं बात सेट हूँ, बंगला बन गया है, सोफा सेट बन गया, टी सेट बन गया, पर खुद अपसेट हो गया। क्यों? चंद्रलोक पर जाना था, नील स्ट्रॉन्ग उसका नाम था, नील स्ट्रॉन्ग। पहला एक पृथ्वी लोक का व्यक्ति चंद्रलोक में जा रहा, यंत्र में बैठा, बड़ा नास्तिक था, कभी मंदिर नहीं गया, कभी संत के पास दर्शन नहीं करने गया, वैज्ञानिक था। चलते चलते जब चंद्रलोक में जा रहा था तो अचानक जो है बीच में यंत्र बिगड़ गया। यंत्र बिगड़ गया तो उसकी हालत खराब हो गई। जब यंत्र बिगड़ गया, ना जाने कब क्रैश हो जाएगा। जैसे पीछे कुछ साल पहले एक यंत्र बिगड़ गया तो कल्पना चावला आदि वो सब क्रैश हो गए अंतरिक्ष में, वही खत्म हो गए। तो वो न्यूज ने सोचा कि अब जो है छुट्टी होने वाली है, मरने वाला हूं। तो अचानक उसके दोनों हाथ ऐसे हो गए और कहने लगा, हे गॉड, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैंने कभी तेरा नाम नहीं लिया, कभी तेरे द्वार नहीं आया, कभी तेरा मैंने ध्यान नहीं लगाया। आज पहली बार मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रेयर है, मैं आपको पुकारता हूं। अगर वास्तव में प्रभु आपकी सत्ता है, आपकी पावर है, तो एक बार मुझे बचा लो और मुझे पृथ्वी लोक पर वापस पहुंचा दो, मेरे परिवार में, मेरे संसार में। अचानक कुछ ऐसा हुआ तो यंत्र ठीक हो गया। ये सच्ची घटना है, स्वयं लिखी।
जब वो यंत्र ठीक हो गया और वो चंद्रलोक पर पहुंचा, वहां से कुछ माटी वाटी लेकर आया, वापिस आ गया। जब पृथ्वीलोक पर वापिस आया तो किसी एक दार्शनिक स्टूडेंट विद्यार्थी ने उससे पूछा कि भाई तू पहला व्यक्ति है, पहला वैज्ञानिक है जो अंतरिक्ष में चंद्रलोक पर पहुंच कर गया, ये बता कि चंद्रलोक में और यहाँ पृथ्वीलोक में क्या अंतर दिखाई दिया तुझे, क्या डिफरेंस, क्या भेद दिखाई दिया? तो उसने कहा भेद तो कुछ नहीं, यहाँ से जैसे चंद्रमा छोटा सा चमकता हुआ दिखता है, ठीक वैसा ही चंद्रमा में जब मैंने पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी भी छोटी सी चमकती हुई दिख रही थी चंद्रमा से। जैसे चंद्रमा दिखता है ऐसा ही पृथ्वी दिख रही थी। वहां से मैं माटी भी लाया, जैसे यहाँ मिट्टी है, पृथ्वी है, वैसे वहां पृथ्वी, सब कुछ ऐसा है। तो बाहर मैंने देखा कोई मुझे परिवर्तन नहीं लगा, लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मेरे अंदर अंतःकरण में परिवर्तन आ गया। बोले क्या परिवर्तन आया? बोले परिवर्तन ये आया जब मैं गया था उससे पहले मैं नास्तिक था, जब मैं वापस आया तो मैं आस्तिक बनकर आया। ये संस्कार चाहिए आज, आस्तिकता के संस्कार। ले लो एक छोकरा दे दो अगर, ऐसा कहेंगे कि नहीं? धन से भी प्रिय क्या है? संतान, पुत्र प्रिय है, और पुत्र से भी प्रिय पिंड, पिंड ये शरीर। देखो वानर जो होता है ना, वानरी मम्मी, बांदरी जो वानरी, वो इतनी आसक्ति होती उसकी बच्चे में कि ऐसे चिपका के रखती, मरे हुए बच्चे को छोड़ती नहीं। और वही वांदरी अगर पानी में गिर जाए, नदी में गिर जाए और पेड़ में बैठी है और पानी पेड़ तक आ जाए और उसके पैर तक आ जाए, तो उस जिंदे बच्चे को नीचे रख के उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। ये मरता है तो मर जाए, पर मेरे प्राण। बच्चे से भी प्रिय क्या है? पुत्र से भी प्रिय है अपना शरीर, और इस शरीर से भी प्रिय है अपनी इंद्रियां। सब कुछ चले जाए पर प्राण नहीं जाना चाहिए। मरना चाहते हैं क्या भाई? नहीं ना? और प्राण से भी प्रिय है अपनी आत्मा, जो हमारा स्वरूप है। स्वामी राम वही बात कह रहे जब इंग्लैंड में वो जो विज्ञापन में भारत के हैं, कहीं बोल दिया हिमालय में भेज दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोला नहीं महाराज, आजकल तो सस्ता सब चाहते हैं, चीप काम हो सकता। तो बोले यही बोला, गंगा में जाने की जरूरत नहीं, गंगा यही घर में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं परमात्मा को यही बुला लेता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, परमात्मा को बुलाने से पहले तुम्हारा परिचय देना पड़ेगा। तुम अपनी पहचान बताओ, तुम्हारा परिचय क्या है? कभी विचार किया मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं? नहीं, खा पी रहे, मौज ले रहे, खूब खिचड़ी खा रहे, रींगना की सब्जी खूब खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है मुझको, ये नहीं जानते। उसने कहा महाराज ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं कौन हूं। बोले वाह, पहले तुम ये जानकर आओ कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम ये जान लोगे मैं कौन हूं, तो तुम्हें आता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये उसको पता चल जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। ये सत्संग का फल है। तो हमारे श्रद्धे स्वामी जी ने, कैलाशपुरी जी महाराज ने, बड़े नरम हैं, बड़े विनम्र हैं। और देखो श्रद्धा स्वामी दयानंद जी महाराज से हम लोगों का बड़ा प्रेम था। सन 86 में जब स्वामी जी मंडलेश्वर बने, आपकी दीनता भी दूर हो जाएगी। तो बहुत सुंदर ये जो त्रिदिवसीय जो है कार्यक्रम है, પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈ રહ્યું છે। 12 વાગે આપણે પૂર્ણાહુતિ કરવાની છે, એમ કરવાનો સમય પણ થયો છે। પણ ખૂબ આનંદની વાત છે, ગુરુદેવની કૃપા છે। આવા સત્ચંડી યજ્ઞ આપણે નિમિત્ત માત્ર છે, આવા જે કાર્ય કર્યું છે એ બી એની જ શક્તિ છે, પણ દૃઢ વિશ્વાસ રાખો। મને કીધું સ્વામીજીએ, અખંડ સ્વામીજીએ કીધું ને, આપણે એકવાર પકડી લીધા પછી બાકીનું કામ એ કરે, પૈસાની કઈ જરૂર પડતી। અને ગુરુજી મને એક જ વાત કરેલી કે કરશનભાઈ, તમે જ્યારે મારા પાસે આવશો શરણમાં
તો મારે કાંઈ નહીં, પણ તમે રહેશો તો મારું નામ રહેશે. અને એક જ વાક્ય આ સંન્યાસનું અને એ કાર્ય અત્યારે ગુરુદેવ કરી રહ્યા છે. આવતા વર્ષનો કાર્યક્રમ સત્ચંડીનો જવાહરભાઈ, હા જવાહરભાઈના વાગદાદાની કંપની છે બધી અહીંયા અમરેશ્વર મહાદેવની સાથે ભક્તિ કરતા કરતા આપણા જીવનમાં શું કે જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય એવી જ પ્રાર્થના કરીએ. પૂર્ણાવતીમાં બુદ્ધિને યાદ કરીએ. હે શ્રીમતી તો ભગવાન બોલો બોલા હે આત્મજ્ઞાન બુદ્ધિ માનસે તમે જાઓ નાહી ધર્મ કર્મ નિષ્ઠા યોગ વિજ્ઞાન મુજમે પ્રભુ દિવ્ય ભક્તિ દેતો તારા મોક્ષધામ પાઓ નહીં તે જવાયો ભૂમિ આકાશને મુજમે આનંદરૂપ બનકે તવા મોક્ષધામ પાઓ તુમને જશોદ વ્યાપક અવિનાશી મેરી તવા મોક્ષધામ પાઓ નહીં જ્ઞાન થોય કોઈ વાસ્તુ પવિત્ર જગમે વેદો જ્ઞાન પાકે તવા મોક્ષધામ પાઓ આનંદ મોલ દિશકા ગુણપાત્ર તત્વસાગર વેદાંત પુષ્પ લેખે તવા મોક્ષધામ પાઓ દયાનંદ મોક્ષ ફલકે તારો ત્યાગ દેના હરિપૂર્ણ બ્રહ્મ ભજકે તવા મોક્ષધામ પાઓ હે શ્રીમતી તો ભગવાન તવા મોક્ષધામ પાઓ હે આત્મજ્ઞાન બોધે માનસે તમે જાઓ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 ગુરુ નારાયણ નારાયણ
ઉપર સ્ટેજ પર બધા બિરાજમાન મંડલેશ્વરો, મહંતો, સંતોને આપણે બધા એક જ પ્રાર્થના એવી કરીએ કે જ્યારે જ્યારે અમારા કે નાના ભક્તોનું આમંત્રણ આવે ત્યારે સ્વીકારીને પધારજો. કે અંદરનો માયલો જે સૂતેલો છે એ જલ્દી જાગે એવા પણ આશીર્વાદ આપતા જજો. બધામાં પ્રેમ ભાવ જાગે એ રીતે આવું કાર્ય જ્યાં સુધી આવા સંતોનું પ્રેમ સમજી વાત એ આપણા બધા પ્રત્યે પ્રેમ છે, ભાવ છે એટલે આવ્યા, બાકી રૂપિયા આપે તો નહીં આવે. રૂપિયા તો બહુ મળે પડે એટલે દીકરો પડે. અહીંયા નાનામાં નાનો છોકરો બી જયારે દર્શન કરાવે સ્વામીજી કાંઈ વાંધો મલેશજીને વાત કરી, નાનાપણનો કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો. મહારુદ્રનો ચાંદોદ ગયા, ભૂમાનંદ સ્વામી જોડે સ્વામીજી વિચાર સુરતથી આવ્યા, માધવના આશ્રમમાં ભોજન પ્રસાદ લીધો. મહારાજે કીધું ભૂમાનંદજીને, મને એમ થાય કે મારો વાલો મારું કેટલું ધ્યાન રાખે. અને જૂનો આશ્રમ જ્યાં 10x10 જ્યાં રહેતો હતો રૂમમાં, એની સામે પૂજ્ય સ્વામીજી આપણને આખો આશ્રમ આપી દીધો. 1.5 વર્ષ સુધી ત્યાં રહ્યા. તે જેના ચરણમાં છે એટલે ગુરુ સતત આપણું ધ્યાન રાખે. પ્રસંગની વાત કરવા જાય તો ખરેખર આપણે કઈ છે જ નહીં. આવા જ્યારે તે સમયે મારો હાથ સ્વામીજી પકડ્યો છે તો હું એમને છોડી શકવાનો શંભુભાઈ તમે આવો ભાઈ. ત્યાર પછી વેદાંતાચાર્ય પંજાબ હરિયાણાના એવા આત્માનપુરી મહારાજનું કવર અને ધાબળો. ત્યાર પછી શ્રી ધનેશભાઈ આવે. અને અમારા નરમેશભાઈ આવો. અહીંયા આવી. ચાલો નિખિલભાઈ આવી જા. અરે ભાઈ કરશન પૂછ. ચલો ભૂપન કુમાર આજા. પરમ પૂજ્ય સ્વામી ગોપાલન મહારાજ સ્વામીજી परम पूज्य स्वामी कमलाबेन, हाँ हमारा सुकानी किशन भाई આપણે તો ઘરના ચિંતા નહીં. સારથી હા ભાઈ લઈ હા બોલો કરશનભાઈ આવો. ચાલો
સાલ ના સાલ બરાબર. જગનેશ્વર મહાદેવના પૂજારી છે ઘણા વર્ષથી. આવો કરશનભાઈ બાજુ. હા હાર પેલા સમજો જે તે શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. સદગુરુ દેવ કી જય. પરમ પૂજ્ય વંદનીય પાકડીથી મહામંડલેશ્વર સ્વામીજી, જગદીશાનંદ સ્વામીજી, સદગુરુ દેવ કી જય. આ જે કાર્યક્રમ થયો ને ભાઈ, એ કાર્યક્રમનું જેણે બીડું ઝડપી લેવા અમારા શંભુભાઈ આગળ આવે. એક હાર આપો સ્વામીજીને. બરાબર. ખરેખર આમ જોવા જાય તો ભગવાન એને મોકલી જાય પહેલા શંભુ પાસે. એટલે સુંદર કામ અમારા એક राजेश चाहे हो. अरे निखिल ने भी अपने यार पेंटर ने एलोज बने कमलो एक कंबल लो आदि क्या है रुपया तो बहुत है तुम्हारे पास. तो પછી એક ને હું કામ બાકી રાખીએ આપણે સ્વામીજીના ડાયર ભાવ અને પ્રેમથી નમસ્કાર ને દર્શન કરી લો. હા ऐसा ले जा આ જૂનો જોગ્યું છે બનાયા છે. ચાલ હા સુંદર મજાનો પ્રોગ્રામ રાત્રે ડાયરાનો કરેલો છે. એમણે ખૂબ પ્રેમથી અહીંયા લાભ લેવાનો. હવે આભાર વિધિ માટે મહારાજ કી પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી જગદીશાનંદ સાગર મહારાજ, સ્વામી શ્રી આત્માનંદ પુરી મહારાજ, ઉપસ્થિત મહંતો, સંતો અને ભક્ત પ્રેમી ભાઈઓ બહેનો, આજે ભેંસદરા ગામે 3 દિવસ મિની મહાકુંભનું મહાયજ્ઞમાં દૂર દૂરથી ઉપસ્થિત સંતો મહંતોથી ગામને પાવન કર્યું છે. તો હું આપ સૌનો સંત સમુદાયનો ભેંસદરા જગનેશ્વર મહાદેવ યુવક મંડળ તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ આયોજનને ગામને આ આયોજન સુંદર રીતે પૂર્ણ પડે એવી અપીલ. અહીં દૂર દૂરથી મહામંડલેશ્વર સ્વામી જગદીશાનંદ સાગર, મહામંડલેશ્વર સ્વામી આત્માનંદ પુરી, સ્વામી વિવેકાનંદ સરસ્વતી મહારાજ, સ્વામી ભૂમાનંદ સાગર મહારાજ, સ્વામી અખંડાનંદ પુરી મહારાજ, વાપી નિવાસી અને ઉપસ્થિત સંત સમુદાય, આપનો કિંમતી સમય
આપી ભેંસદરા ગામને પાવન કર્યું છે તે વતી હું જજ્ઞેશ્વર મહાદેવ મંડળ કરું છું. અમારી કાર્યકર સમિતિ તમામ જરૂરિયાત પૂરી પાડી છે. પાણી સમિતિ, રસોઈ સમિતિ, વ્યવસ્થા સમિતિ, સફાઈ સમિતિ, યજ્ઞ મંડળ સમિતિ તથા કશ્યપભાઈ રસોઈયા નાનુભાઈ તથા તમામ જેમણે પ્રવીણભાઈ મંડળવાળા તથા જેમણે અહીં સેવા આપી છે બહારથી તથા ગામથી તથા ગામની બહારથી, હું સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને એ રીતે સહકાર્ય કરતા રહો અને સાથ સફળ આપતા રહો. તો વધુ ના કહેતા સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને ફરી એકવાર આવો મહાયજ્ઞ થાય એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. જય હિન્દ, જય ગુરુદેવ, રામ કબીર સૌને. સદગુરુદેવ ओम पूर्णमदः પૂર્ણમિદં પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. મહાદેવ. अरे हादेव दवे भात करातो मच्चाले हो धत्ते दायक बृहस्पते आदि आदर्जो अरे व्योमदेवेना तिकरातो मज्जाने सारे प्रजा सूर्य नमः. बोलो श्री अंबे मात की जय. સંતો પૂર્ણાવતી માટે ભાઈ શાસ્ત્રી બધા શ્રીફળ યજ્ઞશાળાની અંદર પ્રવેશ ન કરે ખાસ સૂચના સાથે. जगन्देवासो कृतमान भाविन दन्नाधीन्द्राय गद्गुरुर्जाय गान्द्रयानदे गादे तद्ददाय निष्ठाचक्षुरुतो औरगन्धरदा समुद्रा छोतपराजा रिपुणानाव चक्षु भेदस्यारारा अरूपो न भागे. ओम श्रम्यक्षवन्ति सरितो सोत्पात परमियः पातयन्ति जिह्वाः वेदस्यानारूपो न भागे. काष्ठा भिन्नायर्विभिन्नमाना विपरावन्ति समानेका સર્વો આપી દો. વસુધરા ભાઈ ધ્રુવભાઈ હર્ષભાઈ સર્વો આપો. આપણે દરેક યજમાનો એ નારિયેલો મી ભાઈ વિશિષ્ટ સુષ્ટ રૂપાંત સિદ્ધ રૂપાંત તમે
बोलो श्री अम्बे माता की जय। पर्यन्तं यद्यद् होमं यस्य देवताय यावन्त यावन्त संख्याकं यद्यदाहुतयः सा देवता प्रियता नमः। હવે પાણી થોડું ચાખી લ્યો, એ થોડું ચાખી લ્યો। તે દેવતા થોડું મસ્તક ઉપર લગાવી દો, થોડું માથા પર લગાવી દો। તે દેવતા શાંતિદા પુષ્ટિદા વરદા ફલદા ભવે તો સંસો। आरती प्रज्वलित करो। आरती प्रज्वलित करी दरेक यजमानों ने भूदेवो भस्म करी नाखे। जेने भस्म न थई होय यजमान जरा ऊंचो हाथ करजो। आरती ने उभा थई जाजो दरेक जरा के जय आद्या अखंड ब्रह्मांड की
गगनावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहित। चमचे भरी पानी फेरो। जितना दिया मेरी बात ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। ओ कबीर कहे कमाल को तू दो गाता सीख ले, और कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। बोल श्री अम्बे मात की जय, नव दुर्गा मात की जय। आज्ञा अनुसारतः त्रिदिन पर्यंतम कृतः यद होमम पम यद तपम यद सिद्धवादानेन માટે ગાયને રોટલી આપી દેવાની। ત્રિદિન पर्यंतम ગૌગ્રાસ સ્વાન ભાગમ દાસે। गंग भंग दो बहन है, अरे रहती शिव जी के संग। ए तारन तरन गंग है, और भजन करने को भंग। अरे तारन तरन गंग है, और भजन करने को भंग। के वागे वागे छे डमरू ननाद, हे वागे वागे छे डमरू ननाद। भोलानाथ नु डमरू वागे, भोलानाथ नु डमरू वागे। हे वागे